हेलो एवरीवन, आई एम किंजल, आई एम योर मेंटोर फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एसबीआई सीबीओ के कुछ और सवाल। We have been doing this for around 5 days now and we have got great response from all of you. हमें बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है आप सबसे। हम यही कंटिन्यू कर रहे हैं आज आपके साथ on our 7th lecture of most expected questions in SBI CBO. When I say most expected questions, what I essentially mean is कि the pattern of question is something that you can expect, the type of question is something that you can expect, the vocabulary that has been used and overall structure and level of difficulty. These are a few things that you can expect in the final SBI CBO examination. Right now, I would like to tell you that today is the last date. Today is the last date to avail the discount of double validity. Please make sure that you use the code Y659. अगर आप ये कोड यूज करते हैं तो आपको डबल वैलिडिटी का फायदा मिलेगा. That means in the same amount you will get the same class, the same session, all those things for entire 12 months of the year. अब आगे करते हैं. So before starting, make sure you download the application of Adda 24/7 and also subscribe to our YouTube channel of Adda 24/7 Regulatory Bodies. Okay, now we are starting the question. I'll give you like 2 to 3 seconds to make sure that you read the directions of this question. Please read the direction of this question. जल्दी से डायरेक्शन पढ़िए इस क्वेश्चन का. जल्दी से डायरेक्शन पढ़िए. आई होप आपने डायरेक्शंस पढ़ लिए होंगे. सो ये एक बहुत अलग टाइप का अपने आप में सवाल है. दिस क्वेश्चन बेसिकली टेल्स यू कि आपके पास 4 ऑप्शन हैं. यहाँ पे 4 वर्ड्स दिए गए हैं एंड इन बिटवीन दीज 4 वर्ड्स यू हैव टू फाइंड आउट देयर माइट बी 2 सिनोनिमस वर्ड्स और 2 एंटोनिम्स. यहाँ पे या तो 2 सिनोनिमस वर्ड्स होंगे या तो 2 क्या होंगे, एंटोनिम होंगे. एंड ऑल यू हैव टू डू इज टू फाइंड आउट कि क्या ये सिनोनिमस वर्ड्स हैं या एंटोनिम्स हैं. नाउ लेट अस स्टार्ट. सो सबसे पहले कंसेंट का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसेंट? कंसेंट का मतलब होता है जब आप किसी का कंसेंट ले, तो इसका मतलब होता है आप जब किसी से परमिशन ले रहे हैं तो परमिशन बिना लिए ये नहीं करना, वो नहीं करना. सो दैट इज कॉल्ड एज कंसेंट. Nascent is something which is new, जो अभी अभी नया बाहर आया है, जो अभी बिल्कुल नया है. जैसे nascent engineers हो सकते हैं, या फिर इसके और synonymous words है जिसमें से एक वर्ड है नाइव. नाइव का मतलब होता है जो अभी नौ सीखा हो, बिल्कुल बिगिनर हो. Emerging is also a similar word which means जो अभी अभी उभर के बाहर आ रहा हो. And insecure is someone who is not secure about his things. Now, if you see B and C here, both of them are synonymous to each other. दोनों का meaning बहुत ही similar है एक दूसरे से. So, the correct answer here will be a combination of B and C. Hence, it will be option number C. देखिए, every day we are having this session of around half an hour to 40 minutes where we solve 10 to 12 questions every day. But the most important part of this session is that you understand how to solve questions, how to attempt questions in the examination, how to make sure that you get these questions done in the examination as well. ठीक है? Now, please solve this one. This is a similar pattern वाला question. All you have to do is see the meaning and see कि या तो 2 बिल्कुल opposite होंगे या तो 2 बिल्कुल similar होंगे. 2 words can be either extremely opposite or similar in nature.
आई होप यू हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2, आई होप यू हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन. अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है. इलेटेड का मतलब होता है हैप्पी. इलेटेड का मतलब होता है हैप्पी. मैं आपको हमेशा बोलती हूँ वोकैबुलरी लर्न करने के लिए ऑल यू नीड इज अ फ्यू टिप्स एंड ट्रिक्स. यू डू नॉट नीड टू जस्ट do it by the rote learning method where you are just trying to grumble up all the vocabulary in one day. That is not possible. So here we are again eccentric. eccentric का मतलब होता है अजीब, awkward, है ना. explicit का मतलब भी होता है वही. और abnormal, explicit यानी जो उभर के अलग से दिखे, और abnormal यानी भी अजीब या फिर awkward. तो बी और डी तो पेयर है, बी और डी तो पेयर है. सो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वेयर दे आर सेइंग बी एंड डी. बट हाउ डू यू रिमेंबर एक्सेंट्रिक? आप एक्सेंट्रिक को लर्न कैसे करेंगे? एक्स एंड सेंट्रिक. ठीक है, एक्स एंड सेंट्रिक. इफ योर एक्स पार्टनर, जो आपका एक्स पार्टनर था, अगर वो अभी भी आपका सेंटर है किस चीज में? कॉन्वर्जेशंस में. अगर आप अपने एक्स के बारे में अभी भी बात करते हैं, इफ योर एक्स इज स्टिल द सेंटर ऑफ योर कॉन्वर्जेशन, देन दैट इज दैट ओके? Is that okay to have your ex as a center of conversation? I guess it is not. So अगर कोई ऐसा करता है कि एक्स है और फिर भी अभी भी उसी के बारे में बात कर रहे हैं अपने दोस्तों से, so that is awkward. ये एक अजीब बात है. So that is eccentric. It is eccentric. ये देखिए eccentric. तो ऐसे ही मैं आपको और भी बहुत सारे निमोनिक बताऊंगी जब हम क्लासेस में, जब हम बैच में साथ में मिलेंगे. हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम 3rd of the November. हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम 3rd of November, और 3rd of November से आप ये ज्वाइन कर सकते हैं. बट if you are enrolling in the batch where I'm teaching, make sure that you use the code Y659. अगर आप SBI CBO में एनरोल कर रहे हैं, मेक श्योर यू यूज द कोड Y659 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट. इसके बारे में और भी आगे बात करेंगे कि आज डबल वैलिडिटी कैसे है. अभी फिलहाल हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. Please solve this question. Please solve this question. देखिए ये वाला तो बहुत आसान सवाल है, आपसे जल्दी बन जाना चाहिए. ये वाले में टाइम नहीं लगना चाहिए. यू शुड बी वेरी, in fact potentially good, and you should be able to solve this question well. चलिए देखते हैं. सो हियर अबंडेंस यानी खूब सारा, इट मीन्स अ लॉट, है ना, खूब सारा. इनकम्पैरेबल, जिसको हम कंपेयर ना कर सके. देखो इसको दो पार्ट में डिवाइड करो, इन और कंपैरेबल. कोई ऐसी चीज जिसको हम कंपेयर नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड एज इनकम्पैरेबल. प्रोजेक्शन यानी किसी चीज में जब हम कोई आइडिया को प्रोजेक्ट करते हैं. एंड प्लेथोरा ऑल्सो मीन्स अ लॉट. प्लेथोरा का भी मीनिंग होता है खूब सारा, अ लॉट. So as you can see, A and D are synonymous to each other. The correct answer here is E. The correct answer here is E. Let's see question number 4th. Let's see question number 4th. It's the same question. It's the same question. Please take 2 to 3 seconds. Take all the time that you need to solve this question. जल्दी से सॉल्व करिए. ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, पर उतना भी नहीं.
Okay, let's see. Now I am telling you the answer. Question number fourth. Question number fourth. देखो purposefully. Question number fourth. The first one is purposefully. Purposefully का मतलब होता है जब आपके पास कोई इंटेंट होता है, जब आपके पास कोई इंटेंट होता है, आपने purposefully कुछ किया है, यानी आपने purposefully कोई काम कर लिया ताकि आपके साथ कुछ अच्छा हो जाए, किसी और के साथ कुछ अच्छा हो जाए. That is called as purposefully. इनएक्यूरेटली यानी गलत काम करना, इनएडवर्टेंटली यानी कि बिना इंटेंट के काम करना. जब आपके पास इंटेंट नहीं है, जब आपके पास इंटेंट नहीं है और वैसे काम करना. अनचेंजेबली यानी कि ऐसे काम करना कि जिसको आप चेंज भी नहीं कर सकते, है ना. सो एज यू कैन सी, number A and number C have a relationship, but it is of opposite words or antonyms. It is of opposite words or antonyms. तो यहाँ पे correct answer होगा AC. यहाँ पे correct answer होगा AC. So purposefully is with intent, जब आप intent के साथ कुछ कर रहे हैं, and inadvertently is without intent. Inadvertently is without intent. Okay. Now we'll go ahead. Please see question number 5. Please solve question number 5. Okay, I hope you have solved this. This one is an easy question. It should not take a lot of time. देखो इसमें ना एक ही वर्ड है जो शायद आपको डिफिकल्ट लग सकता है, बट इसका मैं निमोनिक आपको बता दूंगी. ठीक है, चलो अब मैं बता दे रही हूँ. जर्मेन, द फर्स्ट वर्ड हियर जर्मेन, ये आपको डिफिकल्ट लग सकता है बिकॉज ऑफ द स्पेलिंग, बिकॉज ऑफ द स्पेलिंग. अब एक मिनट के लिए मान लीजिए कि इसको हम नॉर्मल स्पेलिंग होती, इसकी MANE वाली स्पेलिंग नहीं होती, तो इसकी स्पेलिंग कैसी होती? इफ इट वुड हैव बीन अ नॉर्मल स्पेलिंग, तो क्या ये स्पेलिंग ऐसी नहीं होती? जर्मेन, जर्मेन, ये यही नहीं होती स्पेलिंग, यही होती, करेक्ट. और जब हम किसी भी चीज में मेन लगा रहे हैं, मेन यानी क्या होता है? मेन टॉपिक है, यानी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. मेन यानी इंपॉर्टेंट, और इंपॉर्टेंट यानी क्या हो सकता है एक और, कि रेलेवेंट, रेलेवेंट कि जो एग्जाम में आ सकता है, जो एग्जाम में आ सकता है. मेन क्या होता है? वही चीज जो रेलेवेंट होगी. मान लीजिए मैं आपको कोई ऐसी बात यहाँ पे पढ़ा दूं जो आपके एग्जाम में आ भी नहीं सकती, तो दैट विल बी irrelevant. That will be like I am teaching you irrelevant things. But here what I am doing, I am teaching you main things, important things, hence irrelevant things. But on the other hand, option number D clearly says irrelevant. Option number D clearly says irrelevant. So option number A and D are opposite to each other. These are opposite to each other, and hence E is the correct answer because they share a relationship where they are opposite to each other. Please solve question number 6. Please solve question number 6. Question number 6, guys, it's very easy. ओके, आई टेल यू. क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, इंस्टिगेट का मतलब होता है किसी चीज को प्रोवोक करना, किसी चीज के पीछे रीजन बनना फॉर द प्रोवोकमेंट ऑफ इट. इंक्वायर का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना, कहीं किसी चीज में इन्वेस्टिगेशन को बोलते हैं इंक्वायरी. कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है व्हेन यू आर इंटरप्रेटिंग समथिंग, व्हेन यू आर इंटरप्रेटिंग समथिंग. एंड सिमिलरली इंटरप्रेटिंग का तो मीनिंग ही है इंटरप्रिटेशन. कॉन्स्टिट्यूट या फिर इंटरप्रिटेशन का मीनिंग क्या है? एनीथिंग जिसमें आप
एनालिसिस थोड़ा सा करते हैं और फिर आप इंटरप्रेट करते हैं कि शायद ये हो सकता है. दिस कैन बी द नेक्स्ट 3 थिंग्स दैट कैन फॉलो दिस एक्शन. So these 3 can be the next consequences of this action. So constitute and interpretation, C and D. So यहाँ पे option number C is correct, where option C and D are synonymous to each other. Let us see next question. Just a minute. Okay, this one is the next question. Please solve this one. Guys, make sure you like the session if you are liking it. I have given you a couple number of mnemonics also in this session. I hope you like it, and please stay till the end of the session, as I am going to discuss very important things that are happening, that are going on here at Adda 24/7 related to SBI CBO. Okay, so question number 7th is D. The correct answer for question number 7th is D. क्योंकि सुपरफ्लस और सरप्लस दोनों का ही मीनिंग होता है बहुत ज्यादा, दोनों का ही मीनिंग होता है बहुत ज्यादा. और ऐसा हमने अभी 1-2 से ही पहले शायद 2 और वर्ड किए थे. So I'll definitely suggest you, what you can do here is you can make basically a cluster of 4 words. हमने क्योंकि 2 ऐसे अभी 1 और 2 वर्ड किए ही थे, and then there is superfluous and surplus, so you can make a cluster of synonymous and antonyms word related to a lot. Cluster यानी आपने ग्रुप बना लिया किसी 4 वर्ड को और आपने लर्न कर लिया. जैसे मैं आपको बताती हूँ, किसी भी जगह के हाईएस्ट पॉइंट को बोलते हैं जेनिथ, है ना, या फिर बोलते हैं पिनाकल, या फिर बोलते हैं टॉप, या फिर बोलते हैं चलो टॉप, है ना. तो जब मैं ऐसे आपको ये 3 वर्ड का क्लस्टर बना के दे दूंगी कि जेनिथ, पिनाकल एंड टॉप मोस्ट, है ना, दी टॉप मोस्ट लेवल ऑफ एनीथिंग, तो जेनिथ, पिनाकल एंड टॉप मोस्ट, तो आपको लर्न रहेगा कि ये तीनों का मीनिंग एक ही है, क्योंकि ये तीनों साथ में ही लर्न करोगे. इसको लर्न ही ऐसे करना है, जेनिथ, पिनाकल, टॉप मोस्ट, जेनिथ, पिनाकल, टॉप मोस्ट. तो जब आप इसको साथ में लर्न करेंगे तो आपको ये याद रहेगा कि दिस इज द, अच्छा इसमें एक और है हाईएस्ट, इसका 4th वर्ड है हाईएस्ट. तो आपको ऐसे क्लस्टर से हमेशा याद रहेगा कि ये चारों वर्ड्स एक साथ हैं. ठीक है, please solve question number 8. Please solve question number 8. We are reaching our end of the session. This is a very this is a small session that I am taking because of constraint of the time. I will be joining you sharp at 5:30 in the another session for the other thing. So make sure you watch this entire session. Question number 8, guys, try to solve it soon. देखो इसमें आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है, बट यू कैन एक्चुअली टेक दैट काइंड ऑफ टाइम इन क्वेश्चंस लाइक दिस. रिमेंबर, यू हैव टू ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन करेक्टली. आपको ये क्वेश्चन करेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करनी है. देखो अपॉलिंग तो इजी है. द फर्स्ट वर्ड दैट दे हैव यूज्ड हियर, अपॉलिंग, इट इज एक्चुअली अ लिटिल इजी, इट्स इजियर वन. ठीक है, लेट्स सी. अपॉलिंग का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिससे आपको बहुत डर लग जाए, है ना, कोई ऐसी चीज जिससे आपको डर लग जाए, जो शॉकिंग हो, जो टेरिबल हो, दैट इज कॉल्ड एज अपॉलिंग. सिनिस्टर में रूट वर्ड है सिन, इसका रूट वर्ड है सिन. सिन का मतलब होता है पाप, तो पाप करने वाले को बोलते हैं सिनिस्टर. पर्टर्ब्ड का मतलब होता है एंग्शियस फील करना, इसका मीनिंग होता है एंग्शियस फील करना, बहुत ही डिस्टर्बिंग और एंग्शियस फील करना. एस्टॉनिशिंग का भी मतलब होता है फीलिंग शॉक्ड, फीलिंग शॉक्ड.
तो देखिए यहाँ पे अपॉलिंग का मतलब होता है इतना डर जाना कि शॉक लग जाए। तो यहाँ पे देखिए विद इन ऑल दीज 4 ऑप्शंस, ये जो 4 ऑप्शन हमें मिले हैं, इन ऑल दीज 4 ऑप्शंस देयर आर 2 वर्ड्स दैट आई थिंक विल मेक सेंस टुगेदर, which is A and D. So best among these 4 options, I'm not saying exactly these 2 options, but best among these 4 options, A and D will make most of the sense. So option number D is the correct answer here. Option number D is the correct answer here. Let us see question number 9th, and when you are solving question number 9th, I want you to write the meaning of all these words. Write the meaning of all these words in the comment. Write the meaning of all these words in the comment. All these words in the comment. And the same has to be done for question number 10th as well. I hope you have solved it. Question number 9th. देखिए 9th का करेक्ट आंसर है B, where B and C are related to each other. टॉर्चर का तो मीनिंग होता है टॉर्चर, किसी को फिजिकल पेन, हार्म पहुंचाना. एक्सक्रूशिएटिंग का मतलब होता है बोथ फिजिकल एंड मेंटल पेन. बोथ फिजिकल एंड मेंटल पेन, जब फिजिकल और मेंटल दोनों टाइप का पेन होता है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सक्रूशिएटिंग. That is called as excruciating when there is both physical and mental pain. Now, when we know there is both physical and mental pain, that is called as excruciating. Imprison यानी किसी को कैद कर देना, किसी को कैद कर देना. Extract यानी कि जैसे juices या oil extract या किसी चीज को कहीं से बाहर निकालना, that is called as a process of extraction. जैसे there are surgeries, medical term में भी tooth surgery को tooth extraction बोलते हैं. ठीक है, तो ये हुए ये 4 वर्ड्स. यहाँ पे अच्छा एक वर्ड है एक्सक्रूशिएटिंग, जो आप लर्न कर सकते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. क्वेश्चन नंबर 10th बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. मुझे आप इन चारों के मीनिंग्स कमेंट में लिखेंगे. यू हैव टू राइट ऑल द मीनिंग्स ऑफ दीज 4 मीनिंग्स ऑफ ऑल दीज 4 वर्ड्स इन द कमेंट सेक्शन. डू इट वेरी वेरी क्विकली एंड सॉल्व इट इन द कमेंट्स ओनली. देखिए ये वाला क्वेश्चन शायद आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, बट शुड नॉट टेक अ लॉट ऑफ टाइम, शुड नॉट टेक अ लॉट ऑफ टाइम.
Okay, I guess enough time has been given. I'll solve the question now. देखिए, बहुत आराम से हमें ये सॉल्व करना है. वी शुड नॉट टेक अ लॉट ऑफ टाइम. पर्टिनेंट का मीनिंग क्या होता है? द मीनिंग ऑफ पर्टिनेंट इज रेलेवेंट. द मीनिंग ऑफ पर्टिनेंट इज रेलेवेंट. इम्पोलाइट यानी हार्श या फिर रूड. हार्श या फिर रूड जब बात कोई करे, that is called as impolite. It is related to speech. Irrelevant तो आपको पता है क्या होता है? कोई चीज जो relevant ना हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल जया बच्चन जब बोलती हैं ये जगह है क्या ये सवाल पूछने की, तो वो बेसिकली बोलना चाह रही है कि यू आर इररेलेवेंट, है ना. तो ये इररेलेवेंट यानी ये जगह नहीं है ये सवाल पूछने की. ठीक है. इनसिक्योर यानी someone who is not secure in their is not confident, is not secure in their feelings. Clearly you can see A and C, option number A and C, pertinent and irrelevant, both of them are opposite to each other and hence A और C कहाँ लिखा है? ये option number A, this will be our correct answer. Now I'll take your 4-5 more minutes just to tell you about the upcoming batches of SBI CBO. एक बात याद रखिए, 3rd of November से हमारा बैच चालू होने वाला है ऑफ SBI CBO. ऑफ SBI CBO. तो ये जो हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 3rd of November, इसमें आपको एक्सपर्ट फैकल्टीज मिलेंगे. आज हमारा एक और साथ में सेशन है सारे ही फैकल्टीज का एट 5:30 PM. आज हमारा एक और सेशन है एट 5:30 PM और 3rd of November को SBI CBO का जो हमारा सेशन है का जो बैच हमारा चालू हो रहा है. यू कैन बाय द कोर्स. For buying the course, please make sure that you use Y659 as the code. I'm telling you why you should actually think about buying this course today itself. आपको ये कोर्स आज ही क्यों परचेज करना चाहिए? I have a very strong solid reason for this. I have a very strong solid reason for this. देखिए, I'm telling you one simple thing here, a very very simple thing here. मैं आपको दिवाली के टाइम से बता रही थी कि there are a certain I would say there are a certain discounts that are going on, है ना. As you all know, ₹10 crores और इन सब की बातें हो रही थी. 1 crore. So basically there are discounts going on in crores. There are things that are happening here at Adda 24/7. But if you want कि आपको इन सब में से क्या फायदा होगा, if you feel like आपको इन सब में से क्या फायदा होगा, in that condition make sure, somehow I'm not able to access it, so make sure that you go to Adda 24/7 का एप्लीकेशन. वहाँ पे आप जाके देखेंगे तो SBI CBO का जो कोर्स होता है, the ideal price of that course is around 12 or 13,000 rupees, but आप उसे परचेज कर सकते हैं by using the code Y659 in only 2,700 के अराउंड में आप उसे परचेज कर पाएंगे. मेक श्योर यू मेक दैट परचेज एंड buy the course so that you can get access to our batches from the first day itself. 3rd of November से क्लास स्टार्ट हो रही है और आपको 3rd of November से ही आपकी पढ़ाई अच्छे से चालू हो जाए, इसीलिए आप जरूर यूज करें द कोड Y659. प्लीज रिमेंबर द कोड Y659. I won't take a lot of your time and चलो, I'll take care and goodbye.